हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ लिटरेरी आर्ट। लिटरेरी आर्ट के मेरे आज के इस यूट्यूब सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा चर्चा का विषय है जॉन डन्स होली सोनेट 10, डेथ बी नॉट प्राउड। इस टाइटल से उन्होंने एक सोनेट लिखा था और उसी सोनेट के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो जॉन डन है उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं। उनका परिचय हम देख लेते हैं। जॉन डन कौन थे? जॉन डन वॉज अ ब्रिटिश पोएट एंड ही कम्स फ्रॉम द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। फ्रेंड्स, जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट थे और उनकी जो पोएम्स हैं उनके कुछ यूनिवर्सल थीम्स है, सच एज लव, देन सोल, रिलीजन, मॉर्टेलिटी। इस प्रकार के कुछ थीम्स लेकर उन्होंने अपनी पोएम्स लिखी हुई थी। अगर हम उनके कुछ लाइफ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखें तो जॉन डन वॉज नोन फॉर हिज अनकन्वेंशनल लव लाइफ, having secretly married his employer's daughter Annie Moore and later having 12 children with her. Friends, many saw his poetry as a precursor to modernist literature by the poets like T.S. Eliot and W.H. Auden. अगर हम उनकी लाइफ के बारे में देखें तो जॉन डन जो थे एक रोमन कैथोलिक फैमिली में उनका जन्म हुआ था एंड हिज फादर वाज अ मैन ऑफ द सेम नेम एंड ऑफ वेल्श डिसेंट, जॉन डन। तो Dunn studied at Oxford University, later working as a lawyer before becoming an Anglican cleric. And in 1615, Dunn was ordained as a priest in the Church of England. Eventually, he rose to the position of Dean of St. Paul's Cathedral in London. And he died in 1631 at the age of 59 and was buried in St. Paul's Cathedral. Friends, अगर उनकी पोएम्स हम देखें, उनका लिटरेरी करियर हम देखें तो इट वाज अ टेस्टामेंट टू हिज वर्सेटिलिटी एंड प्रोफाउंड impact of English literature is found on his poetry. He began his career as a young poet, initially writing love poems characterized by wit, elaborate metaphors, and intricate wordplay. And later on, his literary focus shifted. He immersed himself in the world of politics and diplomacy, working as a secretary to Sir Thomas Egerton and later as a member of parliament. This came after Dunn's naval expedition against Spain in 1958, and during this period, he composed a serial of satirical and elegiac poems that reflected the political and social concerns of the time. So, friends, if we are going to see about his legacy, Donne's legacy as a metaphysical poet and influential preacher remained intact long after his death. Also, his works continued to be revered by readers and scholars, and his life, characterized by his spiritual journey, intellectual depth, and poetic excellence, came to a close, but his words and ideas endured as a treatment to the enduring power of literature and faith. Some of his famous works or poems we can calculate as The Canonization, then The Funeral, The Flea, Batter My Heart, Holy Sonnet 14, A Valediction, Forbidding Morning, The Ecstasy, A Valediction of Weeping, Death Be Not Proud, Holy Sonnet 10, Holy Sonnet 7th, At the Round Earth's Imagined Corners, and some few more poems of him. So, friends, John Donne is one of the well-known of metaphysical poets, and his works would be built around wit, paradoxes, and conceits. His writings would also dwell into philosophy and theology. So, friends, let us turn towards his poem, Holy Sonnet 10, Death Be Not Proud. Friends, ये जो poem है, Death Be Not Proud, it is written about the death. People are scary. We, the human beings, are scary about the death. We are scared of
the concept of death. Death is supposed to be our final destination, and one of the other day we are going to reach there. But why should we afraid of death? Why should we get scared of death? That is the discussion which has been done by Dunn. Dunn यहाँ पे एक चर्चा करते हैं कि मृत्यु का भय हमें हमेशा लगा रहता है। हमें मृत्यु का भय क्यों है? हम क्यों इतना डरते हैं मृत्यु से? हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। मृत्यु हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं हो सकती है। वो यहाँ पे कहते हैं, डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल फॉर दाउ आर्ट नॉट सो। तुम हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं हो सकती हो। हमारी लाइफ में हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं उस पर पानी फेरना या फिर वो सब का एक अंत तुम नहीं हो सकती हो, क्योंकि हम जो जिंदा रहते हैं वो हमारे सोल के थ्रू रहते हैं। आत्मा हमारी जिंदा रहती है। अगर हम मर भी जाए, हमें मृत्यु भी आ जाए, तो उसके पश्चात जो जिंदा रहता है वो रहता है हमारा आत्मा। तो उसके बाद हमारी डेड बॉडी अगर नश्वर भी हो जाए या फिर मिट जाए, तब भी हमारी आत्मा जिंदा रहती है। फॉर दोज whom thou thinkest thou dost overthrow, die not poor death, nor yet canst thou kill me. From rest and sleep, which but thy pictures be, much pleasure then from thee much more must flow, and soonest our best men with thee do go, rest of their bones and souls delivery. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि why should we get scared of death? We should not be scared of death. Death is just the short sleep. एक अंशकालीन नींद जो है, ऐसा उन्होंने हमारे डेथ को यहाँ पे रेफर किया हुआ है। एक छोटी सी झपकी जो है हमारी नींद की, उसे डेथ कहा है यहाँ पे जॉन डन ने। और वो कहते हैं कि एक जो शॉर्ट स्लीप है उसके बाद हमारे हम फ्रेश हो जाते हैं, उसी प्रकार है ये डेथ जो है। इसलिए हमें इससे डरना नहीं है। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन हमारी डेथ नहीं हो सकती है, क्योंकि हम जिंदा है हमारे आत्मा की वजह से, और हमारी आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती है। आत्मा हमारी जिंदा रहती है। हमारे मृत्यु के पश्चात वो दूसरा शरीर धारण कर लेती है और अपना कर्म करती जाती है। इसीलिए हमें हमारे डेथ से नहीं डरना है, हमारी मृत्यु से नहीं डरना है। डेथ इज here the poet is comparing death to rest and sleep, which are like images of death. Here the poet is anticipating the death to be even more pleasurable than these activities. He is often here best people often go with death, which represents nothing more than the resting of the body and the arrival of the soul in the afterlife. And next he says that thou art slave to fate, chance, kings, and desperate men, and dost with poison, war, and sickness dwell. And poppy or charms can make us sleep as well, and better than thy stroke. Why swellest thou then? One short sleep past, we wake eternally, and death shall be no more, death thou shalt die. Here, what Donne is saying, death is fully controlled by fate and luck, और हमारी नियति पे निर्भर है। हमारी नियति पे हमारी डेथ निर्भर है, और हमारी डेथ कहीं पे भी हो सकती है। पॉइजन से हो सकती है, युद्ध में हो सकती है, सिकनेस से हो सकती है। अगर हम कुछ पॉपी सीड्स ले लें तो एक शॉर्ट स्लीप हमें आ जाती है, और उसके पश्चात हमें बहुत ही फ्रेश महसूस होता है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो ये जो डेथ है वो दूसरी तीसरी कुछ नहीं बल्कि एक शॉर्ट स्लीप है, और इसकी वजह से हमें उसे नहीं डरना है। द स्पीकर हियर पॉइंट्स आउट दैट डेथ इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ पॉइजन, वॉर एंड इलनेस. Drugs and magic spells are more effective than death.
And when it comes to rest, with all this in mind, what possible reason could be death have for being so puffed up with pride? तो मृत्यु को हमारे ऊपर हावी होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मृत्यु का डर हमें किसी भी प्रकार से हमारी जिंदगी जीना नहीं छुड़वा सकता है। डेथ इज नथिंग बट मियर स्लीप बिटवीन टू पीपल्स अर्ली लाइव्स। सो इसके बाद भी, हमारी मृत्यु के पश्चात भी एक हमारा जीवन है, और वो हमारी आत्मा जी सकती है। हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहती है, और इसी के कारण हमें अपनी मृत्यु का भय हमारे मन से निकालना है, और हमेशा हमेशा के लिए हमें यह सोचना है कि मृत्यु कुछ भी नहीं है, हमें मार नहीं सकती, हमारे कर्मों को नहीं मार सकती मृत्यु, और इसीलिए हमें अपने लाइफ में अपना कर्म करते रहना है और अपनी जिंदगी जीनी है। मृत्यु के भय से हमें एक जगह पे खड़े रहकर डरना नहीं है, और उसका भय हमारे मन में लेकर नहीं जीना है। हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से हमें खुशी से भर देनी है, और भय मुक्त होकर हमें जीना है। तो यही एक बात उन्होंने यहाँ पे हमें इस सोनेट के थ्रू समझाई है। और ये जो सोनेट है वो 14 लाइन्स का सोनेट है, सस्टेट एंड ऑक्टेव पार्ट, ऑक्टेव एंड सस्टेट पार्ट, तो 8 एंड 6 लाइन्स पार्ट है। तो फ्रेंड्स, यही एक ये सोनेट उन्होंने लिखा था, डन ने लिखा था, और इसी के थ्रू हमें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मैसेज दिया हुआ है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना